Good morning, boys. Once again, welcome to my YouTube channel. Myself, Orko Chatterjee, your group admin and your economics teacher. So, after lockdown, it's now everything is getting opening up. So, slowly, we can have a better tomorrow, though the rates are very high, and we have to be safe. So take precautions, all of you. Now, let me tell you, last day we have discussed about the economic problems. Rather, I can say about that basic economic problems we have discussed. So I told you about near about 6 problems. What are the 6 problems here? 3 are the central problems. 3 problems I discussed here with the central problems. So what are the 3 central problems here? Like number 1, what to produce and in what quantity. Number 2, how to produce, and number 3, for whom to produce. So these are the 3 central problems we have discussed here. Another 3 problems, this we can say as the basic economic problems. So with the basic economic, another 3 basic economic problems, like I could say that that is problem of full utilization, problem of efficient utilization, and problem of economic growth. So we will discuss about economic problems is being considered. We will discuss about 6 problems. So what are the 6 problems here? Number 1, what to produce and in what quantity. Number 2, how to produce. Number 3, for whom to produce. Another 3, problem of full utilization, problem of efficient utilization, and the number 3 is the problem of economic growth. So I have discussed, let me give you a quick recap. I have discussed about what to produce. I have discussed about how to produce. I have discussed a little bit about for whom to produce. And I told you that among the central problems of the economy, for whom to produce is the most important problem. बेटा ये मत समझना देश के लिए important problem है. Important from exam point of view. According to our economic point of view, all the problems are important. According to economic point of view, बेटा सारे problem important है. हमें देखने तो सारे ही पढ़ते हैं. But when we are considering about the examination point of view, तो keep it in mind बेटा जी. For whom to produce तो भाई द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, कुछ आए ना आए वो तो जरूर आ जाएगा, कहीं भी कुछ भी हो जाए. सो द सिनारियो व्हाट आई एम गोइंग टू से इज दैट लेट्स टॉक अबाउट फॉर whom to produce. For whom to produce, if I show you here that look at the sidebar, the video which is going on the parallel to this video. For whom to produce, can you see the heading here? Yes, here it is the heading, for whom to produce. This is an central problem. This is a central problem. This is the problem comprises of 2 problems together. This is the problem comprises of 2 problems together. बेटा है क्या? ये एक ऐसा समस्या है जो 2 समस्या मिलके बनता है. अब बेटा 2 समस्या क्या क्या है देख. समस्या नंबर 1, प्रॉब्लम नंबर 1, like for whom the commodity is to be produced. For whom the, look at the sidebar, for whom the commodity is to be produced means किसके लिए बनाना है. That is, look at the symbol, ignore the train sound. Yeah, that is, what are the basic thing about for whom the commodity is to be produced? Like look at here, I can produce for rich or for the poor. बेटा सामान बनाना है, अमीर के लिए बनाना है या गरीब के लिए बनाना है, ये समस्या है. अब तुम बोलोगे काहे का समस्या है. देखो बेटा समस्या तो है. क्या समस्या है यहाँ पर? मेन समस्या ये है कि अमीर के लिए बनाना है तो मर्सिडीज BMW ज़्यादा बनाना है. Understand my word very carefully. If we focus for the production of the rich people only,
our prime focus of production will be the BMWs, Audis, means the commodity which the rich people generally demands. The commodity rich people generally demands. गरीब के लिए बनाना है तो साइकिल बनाना है, सस्ता मोटरसाइकिल बनाना है, सस्ता स्कूटर बनाना है. अंडरस्टैंड माई पॉइंट? टू whom या for whom the commodity is to be produced, for whom the commodity is to be produced. That is, if I tend to produce for the rich, then my prime focus of production will be on the Audis, BMWs. If I tend to produce for the poorer section of the society, my prime focus of production will be the producing cycles, producing low cost motorcycles. तो बेटा सवाल यह है कि किसके लिए बनाना है, that is for the rich or for the poor. Producing for the rich, let me show here, look at the side video which is going on parallelly. BMW, Audi, बेटा अमीर अलावा अमीर मतलब निर्मला सीतारामन जी के भाषा का अमीर नहीं, उनके हिसाब से तो लोअर मिडिल क्लास 6 लाख से 18 लाख है. नो कमेंट्स, गवर्नमेंट की बात है भाई. बट प्लीज 6 lakh to 18 lakh लोअर मिडिल क्लास, माय गॉड, देन हु इज द मिडिल क्लास? IITians की सैलरी उससे कम होती है. ओके, फॉरगेट अबाउट दैट. रिच, BMW, Audi for the rich people. Poorer section, we have to produce cycle here, we have to produce low cost motorcycle here. That means for whom the commodity is to be produced, for whom the commodity is to be produced. Clear my word? For whom to produce. ये तो हुआ पहला समस्या, समस्या नंबर 1. समस्या नंबर 2 क्या है? दूसरा समस्या, दैट इज प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. व्हाट इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम हियर? प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. अब बेटा जी प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? एक कहानी सुनते हैं, ठीक है, स्टोरी. तो भाई कहानी में एक खेत आता है, खेत में गेहूं उगता है. इन ए फील्ड there is a wheat being cultivated. So we can say that in economics प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए? फॉर ए प्रोडक्शन टू हैपन, आप लोग बोलोगे जो अप टू क्लास 10th योर नॉलेज इज लाइक सर रॉ मटेरियल चाहिए. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड. सम हैव रेड कमर्शियल एप्लीकेशन इन क्लास 10. सर लेबर चाहिए, सर लेबर इज वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ बेटा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको मैं थोड़ा भाषा का ज्ञान दूं पहले. व्यवसाय शास्त्र और अर्थनीति में कुछ अंतर है. कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स आर नॉट सेम, सो द टर्म्स कैन नॉट बी यूज्ड साइमल्टेनियसली इन ईच अदर्स. नो, व्यवसाय शास्त्र अलग है, अर्थनीति अलग है. while economics is being concerned, let me repeat it again, while economics is being concerned, there are only 4 factors of production. How many? There are only 4 factors of production. Look into the sidebar. What are the 4 factors of production? Number 1, it is land. Number 2, it is labor. Number 3, it is the capital. And number 4, it is the entrepreneurship. Let me show you the spelling. ENTREPRENEURSHIP. Entrepreneurship. बेटा आप लोग क्लास 10 तक इसको क्या बोलते थे? एंटरप्रेन्योरशिप. चेंज योर प्रोनाउंसिएशन, दोबारा नहीं होना चाहिए. वी आर फ्रॉम एन कॉन्वेंट बैकग्राउंड, so our pronunciation should be like a convent background. It's not entrepreneurship, it's entrepreneurship. The word rather is not entrepreneur, it's like entrepreneur. So let me show you here. What are the 4 factors? Land, labor, capital, and the 4th one is the entrepreneur. Let me tell you a very small thing. अच्छा बेटा, एक दुकान खोलना है, बिल्डिंग बनाना है ना,
बिल्डिंग चाहिए तो वी नीड ए बिल्डिंग, लैंड. In the later part of this chapter, I will make you understand what is land comprises of, what is labor comprises of. Land होता क्या है, क्या क्या करके land होता है. मैं let me tell you what is land in a simple basic way. What is land here? Rather in chapter 2 there is a detailed analysis. I have skipped a bit. In the forthcoming videos I will discover what is all the things about. Or now let's understand a very small portion. बेटा land है क्या, जमीन है ना, लेकिन इकोनॉमिक्स के भाषा में land को थोड़ा अलग डिफाइन किया जाता है. What is land? Land comprises of all the free gifts of nature. Land comprises of all the free gifts of nature which have economic values. मतलब जहां से थोड़ा कमाई हो जाए और वो फ्री गिफ्ट का नेचर होगा तो भी चलेगा. देखो भाई मेरा बात है, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट बनता है तो वहां मेन कमाई का जरिया क्या है, पानी. भाई पानी तो फ्री में ही आता है ना, तो वहां पे लैंड क्या है, दैट पर्टिकुलर. फॉर एग्जांपल फॉर एन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट, व्हाट इज योर लैंड हियर? फॉर एन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट योर लैंड इज योर वाटर. सपोज फॉर योर स्कूल, व्हाट इज द लैंड हियर? योर स्कूल बिल्डिंग इज द लैंड. स्कूल इज ऑल्सो ए बिजनेस हाउस. डोंट वरी अबाउट द फॉर्मेशन. कॉमर्स का बात नहीं करेंगे, इकोनॉमिक्स का बात करेंगे. वी विल टॉक अबाउट इकोनॉमिक्स हियर. कॉमर्स कॉन्सेप्ट इज समथिंग डिफरेंट. कभी फुर्सत में बताएंगे मिलके व्हाट इज द डिफरेंस इन द कॉन्सेप्ट्स. सो इफ आई टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट अबाउट द लैंड, व्हाट इज लैंड हियर? ऑन ए वेरी सिंपल नोट वी कैन से दैट लैंड इज द फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर दैट गिव सम इकोनॉमिक वैल्यूज हियर. सो भाई स्कूल के हिसाब से लैंड क्या हो जाएगा, स्कूल का जो बिल्डिंग है वही आपका लैंड हो गया. लेबर, लेबर कौन होता है? घर में जो लोग काम करते हैं, लेबर. तुम लोग तो यही बोलता है ना, अरे यू गाइस थिंक लेबर कौन है? जो सड़क पे काम करता है, मजदूरी करता है, दे आर लेबर. भाई इज दैट ट्रू? सालों से हाँ आया है तो मैं मान ले रहा हूं भाई यू गाइस विल बी स्पेलिंग मी यस, हाँ, ना बेटा, ना, नो. अर्थनीति के भाषा में हम सब लेबर हैं. इन इकोनॉमिक टर्म्स, इफ आई एम कंसिडरिंग अबाउट इकोनॉमिक्स, वी ऑल आर लेबर्स है. मतलब कौन लेबर है? एनी पर्सन हु इज वर्किंग विद द मोटिव टू अर्न समथिंग रिटर्न. वो इंसान जो कोई काम कर रहा है बदले में कुछ पाने के लिए. भाई मैं ते लोगों को पढ़ा रहा हूं, सैलरी मिलता है ना, सैलरी मिलता है तो हाँ भाई मिलता है, तो वही है भाई. मैं पढ़ा रहा हूं, फ्री में तो नहीं पढ़ा रहा हूं. फ्री में पढ़ाता तो लेबर नहीं होता, बट as I am getting something in return, I am labor. तो बेटा जी आपके पापा भी लेबर है, मेरे पापा भी लेबर है. तो मतलब अर्थनीति के भाषा में कोई भी काम करता हो और बदले में कुछ पाना चाहता हो तो वो कौन है? लेबर. अच्छा बेटा हमें सैलरी मिलता है ना, दिमाग में एक बात फिर से डाल लो, क्लास 11th में नए नए आए हो, भविष्य में काम आएगा. अर्थनीति में सैलरी बोल के कुछ नहीं होता है. Again I am telling you, commerce and economics are different. In commerce there is a term called salary. Rather I am talking about economics. There is no term called salary. Sorry. Yes. In commerce there is no term called salary. Rather there is only one specific term, that is wages. In economics everyone receives wages, no salary. Even what I am receiving in return is wages only. So got my point here? What is land? Labor. Capital. What is capital? That is the produced means of production. बेटा जी अपने दिमाग में एक बार डाल लो पहले. लोहा कारखाना में आयरन ओर इज द कैपिटल, बिकॉज आयरन ओर डालते हो भाई तभी वो फिनिश्ड होकर लोहा निकलता है. बट व्हेन इन ए फैक्ट्री ऑफ टीएमटी रॉड्स, आयरन ओर इज द रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल इज आयरन. मैं एक और आगे बात बोलता हूँ बेटा. सीमेंट फैक्ट्री में सिलिकॉन, जिप्सम, दिस आर द रॉ मटेरियल. बट वाइल फॉर द कंस्ट्रक्शन साइड, बेटा बात को समझ पहले ध्यान से, सब गड़बड़ हो जाएगा. एंड लिसन टू माई वर्ड्स वेरी केयरफुली. एक सीमेंट फैक्ट्री में जिप्सम, सिलिकॉन, ये रॉ मटेरियल होता है, क्योंकि आप जिप्सम सिलिकॉन डालते हो और बदले में आपका सीमेंट आता है. तो फॉर ए सीमेंट फैक्ट्री इज कंसिडर्ड जिप्सम सिलिकॉन इज द रॉ मटेरियल.
while for a construction site, कहीं घर बना रहा हो तो वहां पर सीमेंट बन जाता है रॉ मटेरियल, जो कहीं और पे था फिनिश्ड गुड वो वही बन गया, कहीं और बन गया वो रॉ मटेरियल. सो व्हाट वी कैन से हियर, कैपिटल, sometimes money is also capital. Capital is the produced means of production. बेटा प्रोडक्शन करने के लिए पहले से वो प्रोड्यूस होके आया है कहीं से. आई एम यूजिंग द हिंदी वर्ड बिकॉज टू मेक यू अंडरस्टैंड प्रॉपरली. कैपिटल इज नथिंग बट इट्स द प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन. क्लियर माई वर्ड. व्हाट्स द लास्ट वन इज द एंटरप्रेन्योरशिप. बेटा जी जो आखिरी प्रॉफिट घर ले जाता है ना वो होता है एंटरप्रेन्योर. हु इज एंटरप्रेन्योर हियर? द पर्सन हु मैनेजेस एवरीथिंग, the person who manages each and every bit of the production, we consider him as the entrepreneur. अच्छा बेटा जी, these are the four factors. Again look at the side window. These are the four factors of production. So if there are four factors, then there are four factor inputs. बेटा जी लैंड के लिए आपको क्या देना पड़ता है? क्या देना पड़ता है लैंड के लिए? अरे बेटा रेंट देना पड़ता है, भाड़ा किराया देना पड़ता है. हाँ भाई रेंट, द वर्ड इज रेंट. लैंड का फैक्टर इनपुट क्या है? रेंट. मतलब ये लैंड पाने के लिए बदले में आप क्या देते हो? रेंट. भाषा अलग है. मे बी फॉर ए वैकेंट लैंड ऑफ द गवर्नमेंट यू माइट बी हैव टू प्रोड्यूसिंग द रॉयल्टी, कहीं पे ऑनरेरियम देना पड़ता है. बट द मेन थिंग इज दैट इन इकोनॉमिक्स वी कंसिडर एवरीथिंग एज द रेंट हियर. सो फॉर लैंड यू हैव टू गिव हियर रेंट. लेबर, बेटा जी लेबर ऐसे थोड़ी काम करके जाएंगे, कुछ तो देना पड़ेगा. क्या देते हैं? पैसा देते हैं. बेटा पैसा वैसा ये सब नहीं चलेगा. लेबर वी हैव टू गिव इट हियर द वेजेस. सो फॉर द लेबर लुक एट द साइड विंडो हियर. For the labor, we have to produce, we have to give them the wages. So wages is the factor inputs. बेटा word पे ध्यान दो. Factor of production चार है: land, labor, capital, entrepreneurship. Factor inputs 4: rent for the land, wages for the labor, for the capital it's the interest, and lastly for the entrepreneurship is the profit. So there are four factor inputs. Four factors of production क्या है भाई? Land, labor, capital, entrepreneurship. Four factor inputs. What are the four factor inputs here? Rent for the land, wages for the labor, interest for the capital, and the last one is the profit for the entrepreneurship. Clear one? देख बेटा हम लोग थे तो कहीं और. कहाँ थे? We are there in the for whom to produce. We are there at the for whom to produce. But भटकते भटकते यहां आ गए. अब मेरा बात सुनो. For whom to produce it comprises of two problems. For whom to produce it comprises of two problems. प्रॉब्लम नंबर वन, किसके लिए बनाया? अमीर के लिए बनाया, गरीब के लिए बनाया? अमीर के लिए बनाएंगे तो BMW ऑडी ज़्यादा बनाएंगे, गरीब के लिए बनाएंगे तो मोटरसाइकिल साइकिल ज़्यादा बनाएंगे. तो द पॉइंट नंबर वन इज दैट फॉर whom the commodity is to be produced, that is for the rich. If we produce for the rich, we have to produce for the BMW and Audis, that is for the consumer of the rich peoples. If we produce for the poorer section of the society, we have to produce for the like the low cost motorcycles here. Problem number one. Problem number two, problem of distribution. Now what is problem of distribution? बेटा जी कहानी फिर से वापस आ जाते हैं कहानी में. एक खेत से 1000 किलो गेहूं उगा है. एक खेत में कितना किलो गेहूं उगा है? 1000 किलो गेहूं उगा है. ठीक है बात. भाई 1000 किलो गेहूं को 10 रुपया किलो बेचते हैं तो हमें मिलता है 10,000 रुपया. अगेन लुक एट द साइड विंडो हियर. कितना लिखते हैं? 10,000. अब मुझे एक बात बताइए, ये 10,000 चारों में बटेगा भाई? मीन्स दिस 10,000 इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग दिस फोर, अमॉन्ग द फोर फैक्टर्स. ऑन द 10,000 उसी में से आपको यू हैव टू गिव द रेंट, you have to give wages to the labor, you have to give interest for the capital, and lastly you have to take the profit for your own. Means this 10,000 यही 10,000 को चारों में डिस्ट्रीब्यूट करना है ना. मतलब अल्टीमेटली जो 10,000 मिला उसी 10,000 से आपको लैंड के लिए किराया भी देना है, प्रोडक्शन करना है तो वेजेस को, लेबरों को वेजेस भी देना है, जो कैपिटल आप लिए उसका इंटरेस्ट भी देना, और फाइनली आपको प्रॉफिट के तौर पे घर पे भी कुछ लेके जाना है. Means the most important thing is that here the problem arises. Here the problem arises
किसको कितना दें, बेटा सोल्यूशन नहीं मांगा है तेरे से. नेक्स्ट चैप्टर बात करेंगे सोल्यूशन. हियर वी विल बी डिस्कसिंग ओनली विद द प्रॉब्लम्स. प्रॉब्लम इज हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट और हाउ मच टू डिस्ट्रीब्यूट. वी यूज द वर्ड हियर problem. Look at the side window. Problem of distribution. Got my point? So for whom to produce comprises of two different problems. Anytime this question comes as a 6 marks question, anytime, rather be specific. Every time ये चैप्टर आएगा और ये सवाल ना आए, हो ना सका. So best of luck for your ICSE. Some of your exams are still left. Focus on this. The afford you can how much you can afford, please focus, but still your ICSE is left. Focus on that also. Best of luck. So ends here today's video. Meet you in the next video. Thank you. Stay safe. Bye. For whom to produce? If I show you here that, look at the sidebar, the video which is going on the parallel to this video. For whom to produce? Can you see the heading here? Yes, here it is, the heading. For whom to produce. This is an central problem. This is a central problem. This is the problem comprises of two problems together. This is the problem comprises of two problems together. बेटा है क्या? ये एक ऐसा समस्या है जो दो समस्या मिलके बनता है. अब बेटा दो समस्या क्या क्या है देख. समस्या नंबर 1, प्रॉब्लम नंबर 1, लाइक फॉर whom the commodity is to be produced. For whom the, look at the sidebar, for whom the commodity is to be produced means किसके लिए बनाना है. That is, look at the symbol, ignore the train sound. Yeah, that is, what are the basic thing about for whom the commodity is to be produced? Like look at here, I can produce for rich or for the poor. बेटा सामान बनाना है, अमीर के लिए बनाना है या गरीब के लिए बनाना है, ये समस्या है. अब तुम बोलोगे काहे का समस्या है. देखो बेटा समस्या तो है. क्या समस्या है यहाँ पर? मेन समस्या ये है कि अमीर के लिए बनाना है तो मर्सिडीज BMW ज़्यादा बनाना है. अंडरस्टैंड माई वर्ड वेरी केयरफुली. इफ वी फोकस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द रिच पीपल ओनली, our prime focus of production will be the BMWs, Audis, means the commodity which the rich people generally demands. The commodity rich people generally demands. गरीब के लिए बनाना है तो साइकिल बनाना है, सस्ता मोटरसाइकिल बनाना है, सस्ता स्कूटर बनाना है. अंडरस्टैंड माई पॉइंट. टू whom या for whom the commodity is to be produced. For whom the commodity is to be produced. That is, if I tend to produce for the rich, then my prime focus of production will be on the Audis, BMWs. If I tend to produce for the poorer section of the society, my prime focus of production will be the producing cycles, producing low cost motorcycles. तो बेटा सवाल ये है कि किसके लिए बनाना है. That is for the rich or for the poor. Producing for the rich, let me show here, look at the side video which is going on parallelly. BMW, Audi, बेटा अमीर अलावा, अमीर मतलब निर्मला सीतारामन जी के भाषा का अमीर नहीं, उनके हिसाब से तो लोअर मिडिल क्लास 6 लाख से 18 लाख है. नो कमेंट्स, गवर्नमेंट की बात है भाई. बट प्लीज 6 lakh to 18 lakh lower middle class, my god, then who is the middle class? IITians की सैलरी उससे कम होती है. Okay, forget about that. Rich, BMW, Audi for the rich people. Poorer section, we have to produce cycle here, we have to produce low cost motorcycle here. That means for whom the commodity is to be produced.
for whom the commodity is to be produced. Clear my word? For whom to produce. ये तो हुआ पहला समस्या, समस्या नंबर 1. समस्या नंबर 2 क्या है? दूसरा समस्या, that is problem of distribution. What is the next problem here? Problem of distribution. अब बेटा जी प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? एक कहानी सुनते हैं, ठीक है, स्टोरी. तो भाई कहानी में एक खेत आता है, खेत में गेहूं उगता है. इन ए फील्ड देयर इज अ व्हीट बीइंग कल्टिवेटेड. सो वी कैन से दैट इन इकोनॉमिक्स प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए? फॉर ए प्रोडक्शन टू हैपन, आप लोग बोलोगे जो अप टू क्लास 10th योर नॉलेज इज लाइक सर रॉ मटेरियल चाहिए. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड. सम हैव रेड कमर्शियल एप्लीकेशन इन क्लास 10. सर लेबर चाहिए सर, लेबर इज वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ बेटा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको मैं थोड़ा भाषा का ज्ञान दूं पहले. व्यवसाय शास्त्र और अर्थनीति में कुछ अंतर है. कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स आर नॉट सेम, सो द टर्म्स कैन नॉट बी यूज्ड साइमल्टेनियसली इन ईच अदर्स. नो, व्यवसाय शास्त्र अलग है, अर्थनीति अलग है. While economics is being concerned, let me repeat it again. While economics is being concerned, there are only 4 factors of production. How many? There are only 4 factors of production. Look into the sidebar. What are the 4 factors of production? Number 1, it is land. Number 2, it is labor. Number 3, it is the capital. And number 4, it is the entrepreneurship. Let me show you the spelling. ENTREPRENEURSHIP. Entrepreneurship. बेटा आप लोग क्लास 10 तक इसको क्या बोलते थे? एंटरप्रेन्योरशिप. चेंज योर प्रोनाउंसिएशन, दोबारा नहीं होना चाहिए. वी आर फ्रॉम एन कॉन्वेंट बैकग्राउंड, so our pronunciation should be like a convent background. It's not entrepreneurship, it's entrepreneurship. The word rather is not entrepreneur, it's like entrepreneur. So let me show you here. What are the 4 factors? Land, labor, capital, and the 4th one is the entrepreneur. Let me tell you a very small thing. अच्छा बेटा, एक दुकान खोलना है, बिल्डिंग बनाना है ना, बिल्डिंग चाहिए तो वी नीड ए बिल्डिंग. लैंड. इन द लेटर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर आई विल मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज लैंड कंप्राइजेस ऑफ, व्हाट इज लेबर कंप्राइजेस ऑफ. लैंड होता क्या है, क्या क्या करके लैंड होता है. मैं लेट मी टेल यू व्हाट इज लैंड इन सिंपल बेसिक वे. व्हाट इज लैंड हियर? रादर इन चैप्टर 2 देयर इज अ डिटेल एनालिसिस. आई हैव स्किप्ड अ बिट. इन द forthcoming videos I will discover what is all the things about. Or now let's understand a very small portion. बेटा लैंड है क्या? जमीन है ना, लेकिन इकोनॉमिक्स के भाषा में लैंड को थोड़ा अलग डिफाइन किया जाता है. व्हाट इज लैंड? लैंड कंप्राइजेस ऑफ ऑल द फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर. लैंड कंप्राइजेस ऑफ ऑल द फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर व्हिच हैव इकोनॉमिक वैल्यूज. मतलब जहां से थोड़ा कमाई हो जाए और वो फ्री गिफ्ट का नेचर होगा तो भी चलेगा. देखो भाई मेरा बात है, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट बनता है तो वहाँ मेन कमाई का जरिया क्या है? पानी. भाई पानी तो फ्री में ही आता है ना, तो वहाँ पे लैंड क्या है? दैट पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल फॉर एन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट, व्हाट इज योर लैंड हियर? फॉर एन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट योर लैंड इज योर वाटर. सपोज फॉर योर स्कूल, व्हाट इज द लैंड हियर? योर स्कूल बिल्डिंग इज द लैंड. स्कूल इज ऑल्सो ए बिजनेस हाउस. डोंट वरी अबाउट द फॉर्मेशन. कॉमर्स का बात नहीं करेंगे, इकोनॉमिक्स का बात करेंगे. वी विल टॉक अबाउट इकोनॉमिक्स हियर. कॉमर्स कॉन्सेप्ट इज समथिंग डिफरेंट. कभी फुर्सत में बताएंगे मिलके व्हाट इज द डिफरेंस इन द कॉन्सेप्ट्स हियर. सो इफ आई टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट अबाउट द लैंड, व्हाट इज लैंड हियर? ऑन ए वेरी सिंपल नोट वी कैन से दैट लैंड इज द फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर दैट गिव्स सम इकोनॉमिक वैल्यूज हियर. सो भाई स्कूल के हिसाब से लैंड क्या हो जाएगा? स्कूल का जो बिल्डिंग है वही आपका लैंड हो गया. लेबर. लेबर कौन होता है? घर में जो लोग काम करते हैं, लेबर. तुम लोग तो यही बोलता है ना,
अरे यू गाइस थिंक लेबर कौन है? जो सड़क पे काम करता है, मजदूरी करता है, दे आर लेबर। भाई इज दैट ट्रू? सालों से हाँ आया है, तो मैं मान ले रहा हूं भाई यू गाइस विल बी स्पेलिंग मी यस, हाँ, ना बेटा, ना, नो। अर्थनीति के भाषा में हम सब लेबर हैं। इन इकोनॉमिक टर्म्स, इफ आई एम कंसिडरिंग अबाउट इकोनॉमिक्स, वी ऑल आर लेबर्स है। मतलब कौन लेबर है? एनी पर्सन हु इज वर्किंग विद द मोटिव टू अर्न समथिंग रिटर्न। वो इंसान जो कोई काम कर रहा है बदले में कुछ पाने के लिए। भाई मैं ते लोगों को पढ़ा रहा हूं, सैलरी मिलता है ना? सैलरी मिलता है तो हाँ भाई मिलता है, तो वही है भाई। मैं पढ़ा रहा हूं, फ्री में तो नहीं पढ़ा रहा हूं। फ्री में पढ़ाता तो लेबर नहीं होता, बट एज आई एम गेटिंग समथिंग इन रिटर्न आई एम लेबर। तो बेटा जी आपके पापा भी लेबर है, मेरे पापा भी लेबर है। तो मतलब अर्थनीति के भाषा में कोई भी काम करता हो और बदले में कुछ पाना चाहता हो तो वो कौन है? लेबर। अच्छा बेटा हमें सैलरी मिलता है ना? दिमाग में एक बात फिर से डाल लो, क्लास 11th में नए नए आए हो, भविष्य में काम आएगा। अर्थनीति में सैलरी बोल के कुछ नहीं होता है। अगेन आई एम टेलिंग यू, कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स आर डिफरेंट। इन कॉमर्स देयर इज अ टर्म कॉल्ड सैलरी, rather I am talking about economics, there is no term called salary, sorry. Yes, in commerce there is no term called salary, rather there is only one specific term, that is wages. In economics everyone receives wages, no salary. Even what I am receiving in return is wages only. So got my point here? What is land? Labor. Capital. What is capital? That is the produced means of production. बेटा जी अपने दिमाग में एक बार डाल लो पहले। लोहा कारखाना में आयरन ओर इज द कैपिटल, बिकॉज आयरन ओर डालते हो भाई तभी वो फिनिश्ड होकर लोहा निकलता है। बट व्हेन इन ए फैक्ट्री ऑफ TMT रॉड्स, आयरन ओर इज नॉट रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल इज आयरन। मैं एक और आगे बात बोलता हूँ बेटा। सीमेंट फैक्ट्री में सिलिकॉन, जिप्सम, दिस आर द रॉ मटेरियल, बट वाइल फॉर द कंस्ट्रक्शन साइड, बेटा बात को समझ पहले ध्यान से, सब गड़बड़ हो जाएगा। एंड लिसन टू माय वर्ड्स वेरी केयरफुली। एक सीमेंट फैक्ट्री में जिप्सम, सिलिकॉन, ये रॉ मटेरियल होता है, क्योंकि आप जिप्सम सिलिकॉन डालते हो और बदले में आपका सीमेंट आता है। तो फॉर ए सीमेंट फैक्ट्री इज कंसिडर्ड जिप्सम सिलिकॉन इज द रॉ मटेरियल, while for a construction site, कहीं घर बना रहा हो तो वहां पर सीमेंट बन जाता है रॉ मटेरियल। जो कहीं और पे था फिनिश्ड गुड, वो वहीं बन गया, कहीं और बन गया वो रॉ मटेरियल। सो व्हाट वी कैन से हियर, कैपिटल, समटाइम्स मनी इज ऑल्सो कैपिटल। कैपिटल इज द प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। बेटा प्रोडक्शन करने के लिए पहले से वो प्रोड्यूस होके आया है कहीं से। आई एम यूजिंग द हिंदी वर्ड बिकॉज टू मेक यू अंडरस्टैंड प्रॉपरली। कैपिटल इज नथिंग बट इट्स द प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर माई वर्ड? व्हाट्स द लास्ट वन इज द एंटरप्रेन्योरशिप। बेटा जी जो आखिरी प्रॉफिट घर ले जाता है ना, वो होता है एंटरप्रेन्योर। हु इज एंटरप्रेन्योर हियर? द पर्सन हु मैनेजेस एवरीथिंग, the person who manages each and every bit of the production, we consider him as the entrepreneur. अच्छा बेटा जी, these are the 4 factors. Again look at the side window. These are the 4 factors of production. So if there are 4 factors, then there are 4 factor inputs. बेटा जी लैंड के लिए आपको क्या देना पड़ता है? क्या देना पड़ता है लैंड के लिए? अरे बेटा रेंट देना पड़ता है, भाड़ा किराया देना पड़ता है। हाँ भाई रेंट, द वर्ड इज रेंट। लैंड का फैक्टर इनपुट क्या है? रेंट। मतलब ये लैंड पाने के लिए बदले में आप क्या देते हो? रेंट। भाषा अलग है। मे बी फॉर ए वैकेंट लैंड ऑफ द गवर्नमेंट यू माइट बी हैव टू प्रोड्यूसिंग द रॉयल्टी, कहीं पे ऑनरेरियम देना पड़ता है। बट द मेन थिंग इज दैट इन इकोनॉमिक्स वी कंसिडर एवरीथिंग एज द रेंट हियर।
So for land you have to give a rent. Labor, बेटा जी लेबर ऐसे थोड़ी काम करके जाएंगे, कुछ तो देना पड़ेगा. क्या देते हैं? पैसा देते हैं. बट पैसा वैसा ये सब नहीं चलेगा. Labor we have to give it here the wages. So for the labor, look at the side window here. For the labor we have to we have to give them the wages. So wages is the factor inputs. बेटा वर्ड पे ध्यान दो. फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 4 है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप. फैक्टर इनपुट्स 4. रेंट फॉर द लैंड, wages for the labor, for the capital it's the interest, and lastly for the entrepreneurship is the profit. So there are 4 factor inputs. 4 factors of production क्या है भाई? Land, labor, capital, entrepreneurship. 4 factor inputs. What are the 4 factor inputs here? Rent for the land, wages for the labor, interest for the capital, and the last one is the profit for the entrepreneurship. Clear one? देख बेटा हम लोग थे तो कहीं और. कहाँ थे? वी आर देयर इन द फॉर whom to produce. वी आर देयर एट द फॉर whom to produce. बट भटकते भटकते यहां आ गए. अब मेरा बात सुनो. फॉर whom to produce it comprises of 2 problems. For whom to produce it comprises of 2 problems. प्रॉब्लम नंबर 1, किसके लिए बनाया? अमीर के लिए बनाया, गरीब के लिए बनाया? अमीर के लिए बनाएंगे तो BMW ऑडी ज़्यादा बनाएंगे, गरीब के लिए बनाएंगे तो मोटरसाइकिल साइकिल ज़्यादा बनाएंगे. तो द पॉइंट नंबर 1 इज दैट फॉर whom the commodity is to be produced, that is for the rich. If we produce for the rich, we have to produce for the BMW and Audis, that is for the consumer of the rich peoples. If we produce for the poorer section of the society, we have to produce for the like the low cost motorcycles here. Problem number 1. Problem number 2, problem of distribution. Now what is problem of distribution? बेटा जी कहानी फिर से वापस आ जाते हैं कहानी में. एक खेत से 1000 किलो गेहूं उगा है. एक खेत में कितना किलो गेहूं उगा है? 1000 किलो गेहूं उगा है. ठीक है बात भाई. 1000 किलो गेहूं को 10 रुपया किलो बेचते हैं तो हमें मिलता है 10,000 रुपया. बिगेन लुक एट द साइड विंडो हियर. कितना लिखते हैं? 10,000. अब मुझे एक बात बताइए, ये 10,000 चारों में बटेगा भाई? मीन्स दिस 10,000 इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग दिस 4, अमॉन्ग द 4 फैक्टर्स. On the 10,000, उसी में से आपको you have to give the rent, you have to give wages to the labor, you have to give interest for the capital, and lastly you have to take the profit for your own. Means this 10,000, यही 10,000 को चारों में डिस्ट्रीब्यूट करना है ना. मतलब अल्टीमेटली जो 10,000 मिला उसी 10,000 से आपको लैंड के लिए किराया भी देना है. प्रोडक्शन करना है तो वेजेस को, लेबरों को वेजेस भी देना है. जो कैपिटल आप लिए उसका इंटरेस्ट भी देना, और फाइनली आपको प्रॉफिट के तौर पे घर पे भी कुछ लेके जाना है. मीन्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट हियर द प्रॉब्लम अराइजेस. हियर द प्रॉब्लम अराइजेस. किसको कितना दें? बेटा सोल्यूशन नहीं मांगा है तेरे से. नेक्स्ट चैप्टर बात करेंगे सोल्यूशन. हियर वी विल बी डिस्कसिंग ओनली विद द प्रॉब्लम्स. प्रॉब्लम इज हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट और हाउ मच टू डिस्ट्रीब्यूट. We use the word here problem. Look at the side window. Problem of distribution. Got my point? So for whom to produce comprises of 2 different problems. Anytime this question comes as a 6 marks question, anytime, rather be specific. Every time ये चैप्टर आएगा और ये सवाल ना आए, हो ना सका. So best of luck for your ICSC. Some of your exams are still left. Focus on this. The afford you can how much you can afford, please focus. But still your ICSC is left. Focus on that also. Best of luck. So ends here today's video. Meet you in the next video. Thank you. Stay safe. Bye.